welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. किस फिल्म में दीपिका बनेगी लेडी कॉप? कहां रणबीर कपूर हो गए मॉब्ड? क्यों आमिर खान और किरण राव कर रहे हैं कलश पूजा? बॉलीवुड डीवा श्रद्धा कपूर को मिला कौन सा अवार्ड? यूके पॉप सेंसेशन हावी ने की जूम से एक्सक्लूसिव बात. Please put your hands together for the gorgeous Shraddha Kapoor. It's a really proud moment for me, so thank you so much to be a part of such a fabulous group of people who are so inspiring, so thank you so much. For me, something that is really important when associating with a brand, so वो definitely दिल को छूना चाहिए, and revenue and profitability is on one side, but the higher purpose is definitely something that should touch the heart. हम सब जानते हैं कि श्रद्धा कपूर जितनी सुंदर है उतनी ही ज्यादा टैलेंटेड एक्टर भी. But did you know that Shraddha Kapoor has a very keen business sense as well? और वो कई स्टार्टअप्स और इमर्जिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट भी करती है. जी हाँ, श्रद्धा कपूर स्क्रिप्ट्स ही नहीं बल्कि बिजनेस पिचेस भी रिव्यू करती है. At the recently conducted Leaders of Tomorrow Awards, Shraddha Kapoor को मिला Emerging Investor of the Year Award to recognize her contribution and support to promising ideas and future leaders of the business world. तो आखिर वो क्या क्वालिटीज हैं जो श्रद्धा कल के बिजनेस लीडर्स में ढूंढ रही है? Take a look. The next special honor is Emerging Investor of the Year and is going to someone who has actively taken an interest in backing brands and startups aligning with her own values and principles. A leading lady in Hindi cinema, she is a powerhouse of talent who has impressed us with her performances in movies time and time again. But not many people know that she is also an entrepreneur, having invested in brands across multiple categories. She also lives and breathes the brands that she co-owns. That's right, ladies and gentlemen, please put your hands together for the gorgeous Shraddha Kapoor. Now, there are so many people in the audience who are looking to raise funds for their businesses. What does one need to do to get Shraddha Kapoor to say yes to investing in their company? What do you really look at when you're investing? So, chances are that, so as many scripts as I've been reading, जितने भी scripts पढ़ रही हूँ मैं, उतने ही pitch decks भी देख रही हूँ और शायद जैसे आप कह रहे हो कि लोगों को ये पता नहीं है. And for me, something that is really important when associating with a brand, beyond the projections, beyond the numbers, is, you know, the founder and the company's higher purpose. तो वो definitely दिल को छूना चाहिए, and revenue and profitability is on one side, but the higher purpose is definitely something that should touch the heart. Right. So the core thing is the higher purpose Absolutely. of the company and what it stands for. Absolutely. All right. I just want to say one thing. It's a really proud moment for me. So thank you so much to be a part of such a fabulous group of people who are so inspiring. So thank you so much. Thank you. रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छाया रणबीर कपूर का एक्स फैक्टर. वो मॉब भी हुए और डैडी कूल रणबीर कपूर ने इस फेस्टिवल में जो कुछ कहा वो हेडलाइंस भी बना रहा है. बट साथ ही हाईलाइट हो गया है रणबीर कपूर का एक्स फैक्टर भी, क्योंकि रणबीर कपूर के अलावा एक ऐसी एक्ट्रेस ने ये फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया जिनके साथ कभी रहे थे उनके लिंकअप के रूमर्स. हालांकि अब जब रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर लव रंजन की नेक्स्ट फिल्म रिलीज की तरफ बढ़ रही है, तो रणबीर कह रहे हैं कि वो आगे से नहीं बनेंगे किसी रोम कॉम का पार्ट. डैडी कूल रणबीर कपूर की लव लाइफ का एक पुराना चैप्टर खुलता दिखा जेद्दा के रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जिसे रिसेंटली सैफ, कटरीना, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के अलावा ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स ने भी अटेंड किया.
और अब रणबीर कपूर ने भी इस फेस्टिवल को अटेंड किया। लेकिन फेस्टिवल में सेम डे एंट्री ली एक्ट्रेस माहिरा खान ने भी, जिनके साथ ईयर 2017 में थे आरके के लिंकअप रूमर्स। आइए आगे की डिटेल्स बताते हैं इस स्टोरी में। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणबीर कपूर ने एंट्री ली नेवी ब्लू चेक प्रिंट ब्लेजर में। तो वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने सेम डे इस फेस्टिवल को ग्रेस किया इन अ रॉयल ब्लू वन शोल्डर गाउन, जिसके बाद टिंसल टाउन में हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि क्या हुआ होगा जब आए ये दोनों आमने सामने। ये सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि ईयर 2017 में रणबीर कपूर और महिरा खान के लिंकअप रूमर्स जोरों पर रह चुके हैं, और जब रणबीर से पूछा गया उनके रिलेशनशिप स्टेटस से जुड़ा सवाल तो उन्होंने रूमर्स को गलत बता दिया था। I have never been single in my life. Since the age 7, I have always been in a relationship. This is the first time I am single and it's amazing. You have a lot of time for yourself. I am not meeting anybody. The only people you meet are the film industry people, and eventually the only people you start talking to are actresses. वैसे फेस्टिवल में पहुंचते ही रणबीर कपूर मॉब्ड भी हो गए, क्योंकि उनकी झलक पाने के लिए फैंस ने इतना क्रेज दिखाया जो किसी सुपरस्टार को ही मिलता है। वहीं इस फेस्टिवल में फैंस इंटरैक्शंस के लिए उन्होंने मीट एंड ग्रीट सेशन भी अटेंड किया और रिवील किया कि आने वाले दिनों में वो शायद रोम कॉम नहीं करेंगे। रणबीर ने कहा, I don't know. It is probably going to be one of the last romantic comedies I do because I am getting older. अब जब रोम-कॉम का जिक्र छिड़ ही गया है तो बता दे कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर अनटाइटल्ड फिल्म का नाम एक खास वीडियो के जरिए अनाउंस होने जा रहा है। रिपोर्टेडली वीडियो नेक्स्ट वीक सामने आएगा। सुनने में तो ये भी आया है कि मेकर्स वो खास वीडियो एवतार द वे ऑफ वाटर के साथ थिएटर्स में भी दिखाएंगे। ऐसे में रणबीर कपूर के फैंस को ड्यूरिंग न्यू ईयर वेकेशंस बिग स्क्रीन पर अपने फेवरेट स्टार की झलक देखने का मौका तो मिल ही जाएगा। लेडी सिंघम कब आएगी, लेडी सिंघम कब आएगी? तो सिंघम अगेन में लेडी सिंघम आएगी। इस अवतार में दीपिका को देखने में मुझे बड़ा मजा आता है एज एन ऑडियंस। दीपिका पादुकोण जल्द ही लेने जा रही है लेडी कॉप अवतार, वो भी रोहित शेट्टी की सिंघम फ्रेंचाइज में। यस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि ये अनाउंसमेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोहित शेट्टी ने किया है। कि लेडी सिंघम कब आएगी? तो सिंघम अगेन में लेडी सिंघम आएगी। तो क्या दीपिका पादुकोण रिप्लेस करने जा रही है सिंघम अजय देवगन को? ये तो आप स्टोरी देखकर जान ही जाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि दीपिका अपने नए घर के किचन का इनॉग्रेशन हस्बैंड रणवीर से क्यों करवाना चाहती है। सिंघम को मिलने जा रही है लेडी कॉप, और रोहित की वो लेडी कॉप कोई और नहीं बल्कि है दीपिका पादुकोण, जो पहले भी रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में चेन्नई एक्सप्रेस का पार्ट रह चुकी है। देख, कुछ भी कर ले, आज पूरा अटेंशन वहाँ रहने वाला है। मेरा भी पूरा अटेंशन वही रहता है सर। मेरे को भी नहीं, मैं गाने में मैं भी हूँ। मेरे को अभी पता चला, मैं तो उधर ही देख रहा हूँ, उधर भी इधर भी। हमेशा के लिए आजा, क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट, क्वीन ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ माई लाइफ। रिसेंटली रणवीर सिंह स्टारर सर्कस के सॉन्ग करंट लगा रे के लॉन्च पर रोहित शेट्टी ने ये अनाउंसमेंट करके सबको चौंका दिया। रोहित ने कहा, She is my lady cop from the cop universe. Wow. And yeah, so अगली बार हम अगले साल ही साथ में काम कर रहे हैं। क्या बात है। इतना ही नहीं, दीपिका ने इस इवेंट में सिंघम की टशन वाली वॉक के सामने अपनी लेडी कॉप वाली स्टाइल का एक नमूना भी दिखाया। लेडी सिंघम। ये जिधर भी जाती है मेरे को कोई भाव ही नहीं देता है।
चलेगा अपने को. चलेगा ना, हाँ हाँ. चलेगा. और ये गाना जो है दौड़ेगा, चलेगा, आग लगाएगा. आफ्टर ऑल मेरी है ना. He नहीं said क्या? it. He said it, यार. But इतना मैं बता दूं, as a fan and admirer of Deepika's work, before I even got to know her, इस अवतार में दीपिका को देखने में मुझे बड़ा मजा आता है as an audience. रोहित शेट्टी के इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस का ये देखने का इंतजार शुरू हो गया है कि अजय देवगन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी स्क्रीन पर कैसे नजर आएगी. तो सिंघम अगेन में लेडी सिंघम आएगी. तो वहीं रणवीर सिंह ने भी इस इवेंट पर रिवील की नए घर को लेकर दीपिका का एक्साइटमेंट. रणवीर ने बताया कि वैसे तो दीपिका इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि उनके नए घर का किचन कैसा होगा, लेकिन किचन के इनॉग्रेशन की जिम्मेदारी खुद पर आ गई है और वो दीपिका के लिए क्या पकाएंगे वो भी रणवीर ने रिवील कर दिया और कहा संडे के संडे दीपिका के लिए अंडे. लेकिन इस इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट बना दीपिका का लेडी कॉप अवतार, जो रोहित की नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाली फिल्म में नजर आएगा. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is super fun, super talented, Stop. extremely real, Ugh. and I think we're going to get up close and personal with him. I'm talking about the very talented Harvey. Ah, thank you. You see what I did there? Yeah, that's good. I'm good. Let's get personal. Let's do it. I got you. Let's do it. Let's get personal. Let's get personal. But you know, Harvey, it's wonderful to have you back in India. And Thank we were you. just having a small chat Yeah. about you coming back to Mumbai for the second time to be in India. Yeah. And how you feel that there's some sort of a connect as well. Yeah, I do. The first ever international promo trip I ever did when I first signed to a record label was here in India, and it's kind of full circle because now after the whole lockdown thing, no one could travel. We're finally going out and visiting places again, and this is the first one since the lockdown. So it's so nice to be able to visit here again. I've got a special connection. Isn't it? Yeah, I do. I think it's such an amazing place, and it's so culturally different, but so beautiful. Like I love it. It's so intense, but in a good way, you know. And the food's very spicy. So since you've said that, now I'm going to make you do something in Hindi. To make yourself easier, you can Yes. say, India, बहुत प्यार. बहुत प्यार. Which means India, lots of love. India, बहुत प्यार. बहुत बहुत प्यार. प्यार. बहुत प्यार. Fantastic. You're a one-take artist. I'm a one-take wonder. You're a one-take artist. What do you do with that talent now? What do you do, right? Okay, so... I'm gonna have to use that in one of my songs now. India, बहुत प्यार. But did you try to eat some food here and... Yes, I try. In the UK, we love Indian food, but it's of course. not like authentic. I know you love Nando's. Yes, I do love it. Have you had a Nando's before? I love Nando's. But aside from that, Indian food I really like. Here is a lot spicier. Of course. Of course. Because it's more authentic. Exactly. This is the authentic food. This is the real, yeah. Whereas the real. in the UK we have the fake stuff, but it's still nice. It And I love an onion bhaji. Onion bhaji. And onion bhaji is my favourite thing ever from an Indian takeaway in the UK. So I think they have them here. So I need to try an authentic onion bhaji to see how it. Okay, so Yeah. you're like the street food, sort of like the snacks kind of guy. Yes. Of course. Yes. So I'll give you some recommendations Please, later. please. I'm very excited. I think onion bhaji is a good start actually. It's perfect for Mumbai. Mumbai has the best onion bhajis. So you better ask them to get you right from the right authentic places. Listen. So I can just walk the street and there'll be some amazing onion bhajis. Yeah, they do. So you Okay, must. I will. But I think it's wonderful. There are a lot of young people who've been listening to your music for a while since you've been a YouTuber. Yeah. And I think they're very proud of the journey that you've achieved. Thank you. Right? Yeah. Look at where you started and I look at where know. you are today. I know. It's a crazy feeling and crazy that there's people actually here, like the other side of the world from London, that actually listen to my music and have watched me grow. I mean, I started when I was 13 years old, and I'm 23 now, so I'm getting older. I'm old. I look young though, actually. And yeah, no, it's really nice, and I feel like I've grown with the fans as well. Yeah. The first time I came out here, I met quite a few fans, and I'm hoping when I do a meet and greet on tomorrow and the next day as well, I think I get to meet some of those that I met a few years back. So it'll be a really nice moment. I also feel like they feel connected to you in a ways because you've also kept it really real.
I feel like a lot of them see the kind of respect you give to your mother. My mum. Fun fact. That tattoo is actually her birthday. If I'm not Yes, lying. it is. That's very good. You know your stuff. You're And- you're good at what you do. Yeah, this is my. You know what? When I first got tattoos, Yeah. everyone said to me, "Oh, you're gonna get addicted. You're gonna get so many, and you won't stop." Yeah. And I got this, which is quite a. I mean, it's quite a Yeah. in your face tattoo. I mean, People see that as Roman numbers, but like, yeah, but I don't notice it anymore. I never see it on myself. So sometimes when I see people staring at me, and they're kind of looking at me, and I'm like, what are they looking at? You know, and then I realised that they're looking at my tattoo on my neck, because normally most people get it on their arms or where it's hidden. So I was quite brave, but I did it. In addition to that, I feel that part of it, because you're rooted to where you come from. Yes. You'll always be the boy from Kent. I'm the boy from Kent. Always, and proud to be so. Yes. And I think a lot of Indians also will always will connect to being that rooted Yeah, to from who their you home are, and their wherever you family. come from. Yeah. And family. Has it been difficult, being this? Because when you're a part of a world like this, where there's so much happening, Yeah, so sometimes you can lose the way. Yeah, I've always said to myself, you've got to be humble throughout everything. I mean, I've met some superstars, some like massive people, and it's always the really big superstars that are so humble and so lovely. So I've always wanted to, one day if I ever become super big one day, then I'll always make sure that I'm humble, and everyone's a person, everyone's normal, so that's definitely something that I'll carry with me. And also just know where you come from, right? From your hometown, from Kent boy. And and my family as well, they're amazing. They've always supported me. They're always so, when I was 14 and I said, I need to miss time off of school, they were like, and I was like, but then they supported me. They was like, okay, we'll let you achieve your dream, and then if not, then back to school. But I'm doing okay, so I didn't, To end us, I would like to say, for all the artists who look up to you, for the young artists who are coming in, what would you tell them? What is an advice that you give to all the people who look up to you? Because you started young, when they're starting young, and to survive in the industry, what would you tell them? Well, if there's any young people that are watching this that want to be singers, anyone in India that wants to be a singer, I would say, you get one shot, so go for it, work as hard as you can, but most importantly, and it sounds really cliche, but you have to enjoy it, because the minute you don't enjoy it, the minute it becomes a chore. And even though this is a job and singing is my job, it's one that I don't think you should feel like it's a job. It's a passion, and it's a hobby that manages to pay like a job, I suppose, and you can keep a lifestyle with it. So just make sure that you enjoy it and you love it. That's what I'd say. Fantastic advice. Thank you so much, Avi. This has been so much fun. Thank you so much. अब Zoom पर म्यूजिक के साथ हो जा Zoomify. वेल हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी कूल चीजें जो आपका Zoom देखने का एक्सपीरियंस और भी सुपर कूल बना देंगे. अब Zoom पर सिर्फ गाने ही नहीं, गेम्स भी होंगे. लेटेस्ट चार्ट बस्टर्स ही नहीं, बल्कि अनोखे ट्रिविया भी होंगे. बेसिकली हर एड ब्रेक में होगा कुछ नया ही सरप्राइज. तो रेडी दोस्तों टू गेट Zoomified? और हाँ, अगर आप अच्छे डांसर हैं, तो आपके लिए भी है एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट. वेल, यू कैन बी ऑन आवर चैनल. यू हर्ड इट राइट. यू कैन बी ऑन Zoom TV. बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड करो. और हमें अगर आपके वीडियोस पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे. तो देर किस बात की? ट्यून इनटू Zoom और हो जा Zoomify. अटेंशन, गाने तो हर जगह है, पर Zoom दे रहा है आपको Zoomify होने का मौका. अब Zoom पर मिलेगा गानों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का खजाना. जानो फिल्म्स के पीछे की स्टोरियां विद बॉलीवुड ट्रिविया. शो ऑफ करो अपना फिल्मी ज्ञान बॉलीवुड क्विज में. इंस्टाग्राम पर अपना डांस वीडियो अपलोड करो विद #Zoomify और पाओ टीवी पे स्टार बनने का मौका. तो देर किस बात की, हो जा Zoomify. प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के वेडिंग प्लान के सीक्रेट्स हो गए हैं आउट. मैं ओवर प्रिपेयर्ड हूँ मैरिज के लिए. क्या होगी सिड कियारा की वेडिंग लोकेशन? गेस्ट लिस्ट में होंगे कौन कौन? वेल, अगर आपको लग रहा है कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की वेडिंग डेट्स करंट वेडिंग सीजन में ही हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि दिसंबर के वेडिंग सीजन में नहीं
बल्कि बॉलीवुड की ये ग्रैंड वेडिंग होगी अर्ली 2023 में और करण जौहर से लेकर वरुण धवन, विकी कौशल, कटरीना कैफ जैसे स्टार्स शामिल होंगे चंडीगढ़ में होने जा रही ये ग्रैंड वेडिंग में। खबर है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी करंट वेडिंग सीजन में नहीं बल्कि अर्ली 2023 में चंडीगढ़ में करेंगे शादी। इतना ही नहीं, सोर्सेस ने करण जौहर से लेकर विकी कैटरीना जैसे स्टार्स से सजी गेस्ट लिस्ट भी रिवील कर दी है। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की मैरिज के कौन-कौन से सीक्रेट्स हो गए हैं आउट? लेट्स फाइंड आउट। रिपोर्टेडली सिड कियारा के वेडिंग प्लान्स हो गए हैं रिवील। सोर्सेस की माने तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की ग्रैंड वेडिंग होगी चंडीगढ़ के आलीशान होटल दी ओबेरॉय सुख विलास में, जहां मौजूद होंगे मल्होत्रास और आडवाणीज। बताया जा रहा है कि दोनों की फैमिलीज ने चंडीगढ़ की वेडिंग लोकेशन इसीलिए चुनी है क्योंकि वो दिल्ली से बेहद पास है। वेडिंग की गेस्ट लिस्ट रिवील करने से पहले बता दें कि चंडीगढ़ और नेशनल कैपिटल में होने वाली वेडिंग फेस्टिविटीज के बाद सिद्धार्थ और कियारा इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए मुंबई में भी रखेंगे एक ग्रैंड रिसेप्शन। रिपोर्टेडली सिद्धार्थ और कियारा फिलहाल गेस्ट लिस्ट फाइनल करने में बिजी है, जिसमें करण जौहर के साथ साथ कई नाम फाइनल भी हो गए हैं। सोर्सेस की माने तो केजो के अलावा अश्विन यार्डी, वरुण धवन, विकी कौशल, कटरीना कैफ, रकुल प्रीत और जैकी भगनानी जैसे कई सेलिब्रिटीज शामिल हैं। हालांकि अब तक ना तो खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने और ना ही कियारा ने अपने वेडिंग रूमर्स पर कोई कंफर्मेशन दिया है और ना ही वेडिंग की डेट फाइनल हो पाई है। करंटली दोनों अपनी अपनी फिल्म्स के शूट में बिजी है। कियारा आडवाणी जहां रामचरण तेजा स्टारर RC-15 की शूटिंग में बिजी है, तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स का शूटिंग स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया है। ऐसे में फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि कब सिद्धार्थ और कियारा अनाउंस करेंगे अपनी वेडिंग डेट्स। ये क्या फिल्म के किसी मुहूर्त की पिक्चर्स हैं? क्या आमिर खान ने किरण राव के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले की है ये पूजा? वेल, एक्टिंग से ब्रेक लेने का अनाउंसमेंट करने के बाद आमिर खान और किरण राव की पूजा और आरती करने की ये तस्वीरें फैंस को हैरान कर रही है और हम आपको बताएंगे आमिर खान के नए मूव से जुड़ा पूरा सीक्रेट। साथ ही बताएंगे वो रीजन जिसकी वजह से आमिर ने लिया है एक्टिंग से ब्रेक और ये भी दिखाएंगे कि क्या हुआ जब आमिर ने अटेंड की काजोल की फिल्म सलाम वेंकी की स्क्रीनिंग। पूजा करने बैठे आमिर खान की एक बेहद खास झलक सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। तस्वीरों में आमिर खान और किरण राव आरती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक्टिंग से ब्रेक के अनाउंसमेंट के बाद एक्स वाइफ किरण राव के साथ आमिर की इस पूजा का क्या है रीजन? लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान ने ये पूजा परफॉर्म की है आमिर खान प्रोडक्शंस के ऑफिस में। आमिर ट्रेडिशनल ढंग से मराठी टोपी पहनकर पूजा में बैठे नजर आ रहे हैं। फिर एक दूसरी पिक्चर में आमिर हिंदू रिचुअल्स निभाते हुए पूजा की थाल हाथ में लेकर आरती करते हुए भी दिख रहे हैं और फिर आमिर के बाद उनकी एक्स वाइफ किरण राव भी आरती करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर आते ही आमिर की ये झलक बज़ क्रिएट कर रही है कि आमिर आखिर एक्स वाइफ के साथ ऐसी कौन सी पूजा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आमिर के ऑफिस की पूजा सेरेमनी की ये पिक्चर खुद ही रिवील कर रही है कि आमिर ने अपने ऑफिस में किया है कलश पूजन। ये पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की है लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने और आमिर की इन पिक्चर्स ने फैंस को भी सरप्राइज किया है और फैंस एक्स कपल की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस पूजा सेरेमनी का रीजन तो आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से सामने नहीं आया। हाँ, आमिर ने फिलहाल एक्टिंग से ब्रेक लेने का रीजन जरूर शेयर किया है। आमिर ने रिसेंटली अटेंड की काजोल स्टारर सलाम वेंकी की स्क्रीनिंग और इवेंट के रेड कार्पेट पर जब उनसे एक्टिंग से ब्रेक के बारे में पूछा गया तो आमिर का रीजन था फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं टाइम।
आमिर ने कहा, बहुत सालों से मैंने एक साथ लगातार काम किया, तो इस वक्त मैं थोड़ा वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाह रहा हूँ और पानी फाउंडेशन का काम चल रहा है और भी काम है, लेकिन एक्टिंग थोड़ा एक साल के बाद आऊँगा। हालांकि सलाम वेंकी के रेड कार्पेट पर ऑल डेनिम में नजर आई उनकी ये झलक फैंस को कंफ्यूज कर गई। कुछ ने कहा वो लग रहे हैं राजमौली सर की तरह, तो कोई उन्हें प्रकाश झा समझकर कंफ्यूज हो गया। पर अगर आमिर का कोई लुक फैंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो पूजा करने बैठे आमिर खान का ये लुक ही है, जिस पर फैंस काफी प्यार लुटा रहे हैं। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But you guys have a great weekend and stay tuned to Zoom.